Welcome back, students. So, in the last part, we have studied about the seed, the story of seed, what this seed has told us the story. So, Hasmukh Bhai is the son of the Damji Bhai and he has started with a new technique. So, he replaces every old thing with a new one, and now the old one, the farmers, the workers which we work in the farms, how they are going to earn money. So in this part, we are going to discuss about the Bajra seed saw differences in the way Damji and Hasmukh did farming. For example, in irrigation plowing. So what are these differences? The difference which Damji Bhai and Hasmukh Bhai did. So what happens? That Damji Bhai used to grow different type of crops, grains and vegetables according to the season, but he used to keep enough for his family and sold the rest to the shopkeepers. And sometimes he also grew some cotton, and also each year he used to keep aside some seeds. But his son Hasmukh did farming with lot of difference. He bought new tractors, modern equipments for farming. He put an electric motor to water pump, a tractor to plow the field. He bought new varieties of seeds from the market, and he used expensive fertilizers. He used to grow mainly those crops which could be sold in the city to get a lot of profit. So all these materials and equipment are very expensive, and whatever profit that he earned from the city, he was used to repay the loan taken by him for the expensive machines and equipments. So Hasmukh Bhai said, with profits from our field, we can progress. What is your understanding of progress? So progress ka understanding, what do you mean by that? So by progress we understand a better and improved standard of living, a good place and a house to live, good quality food, better schooling, availability of all necessary household equipments, fridge and entertainment like TV, radio, etc. Beside all this materialistic improvement, so a high respect in society is also a improvement and a progress in real sense. So right, what kind of progress would you like to see in your area? तो हमारे एरिया में कौन से प्रोग्रेस व्हाट वी आर गोइंग टू सी. सो इन आवर एरिया वी नीड गुड स्कूल, बिग एंड वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, बेटर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और गुड प्लेसेस फॉर रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट के लिए हमारे होने चाहिए. सो नाउ मोर एंड मोर एक्सपेंसेस. सो द नेक्स्ट 20 years सॉ इवन मोर चेंजेस. तो उसके जो बाद के जो दूसरे 20 साल थे वो बहुत सारे चेंजेस देखे ये सीड्स हैं. विदाउट काउज एंड बफेलोज देर वॉज नो काउडंग. विदाउट एक काउ भी नहीं है, बफेलो भी नहीं है, तो काउडंग कहाँ से मिलेगा टू बी यूज इन द फील्ड एज फर्टिलाइजर. अब फर्टिलाइजर फील्ड के अंदर चाहिए, मैन्योर चाहिए, तो काउज नहीं है, बफेलोज नहीं है, तो काउडंग नहीं मिलेगा. सो वी आर कैनॉट यूज फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड. एंड हसमुख भाई हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर. Hasmukh wants to buy expensive fertilizer. The new kinds of seeds were used such that the crop are easily affected by harmful insects. अब जो नए तरह के seeds होते हैं वो they are prone to the insect. अब वो जल्दी से insect उनके अंदर घुस जाएंगे, और जब insect घुसेंगे तो medicines has to be sprayed on the crops to keep away these insects. अब medicine डालना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, दवाई छांटनी पड़ेगी, तब जाके crop सही होगा. तो what happens? Oh, what a bad smell these had. अब ये जो मेडिसिन डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो एकदम खराब स्मेल आती है. एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वेर, और बहुत ही महंगा आता है, एक्सपेंसिव आता है. द कैनल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप. अब कैनल के अंदर जो पानी आता है वो नए क्रॉप के लिए ज़रूरत ज़्यादा कम पड़ता है. तो ऑल द फार्मर्स यूज पम्प्स टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड. तो जितने भी नए फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि ग्राउंड के अंदर बोरवेल करते हैं और उसमें से पानी निकालते हैं. तो मीट ऑल दिस एक्सपेंसेस लोन हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक. अब ये सब खर्चा करने के लिए तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा. तो वॉट एवर लिटिल प्रॉफिट वॉज मेड वॉज यूज टू रीपे द लोन. अब जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है वो लोन को रीपे करने में ही चले जाता है. बट देर वॉज लिटिल प्रॉफिट, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट आता है. एवरी वन वॉज ग्रोइंग कॉटन. तब क्या होता है कि सब लोग कॉटन ग्रो करते हैं. सो द कॉटन प्राइसेस वेर नॉट एज हाई एज बिफोर. अब सब एक साथ में अगर क्रॉप ग्रो करेंगे तो मार्केट के अंदर एक ज़्यादा क्रॉप हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. अब डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, प्राइजेस भी गिर जाएंगे. तो प्राइजेस जो पहले कॉटन के मिलते थे वो अब नहीं मिलते हैं.
सेकेंड थिंग, द सॉइल इटसेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम. अब सॉइल जो है वो पहले जैसा नहीं था, क्योंकि पहले सॉइल की फर्टिलिटी जो थी वो अच्छी थी, वो हम लोग नेचुरल मैन्योर यूज़ करते थे. लेकिन राइट नाउ ये अभी नए काइंड के फर्टिलाइजर्स आते हैं, वो यूज़ कर रहे हैं. ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल्स हैड अफेक्टेड द सॉइल. एक ही क्रॉप बार बार उगाना, क्योंकि क्रॉप को रोटेशन भी ज़रूरी है. अब जैसे सैंड के अंदर रोटेशन होगा तो कुछ क्रॉप को कोई मिनरल्स चाहिए, कुछ क्रॉप को दूसरा चाहिए. तो क्या रोटेशन की वजह से ये कंटिन्यूस होते रहेगा, तो ये कंटिन्यूस होते रहेगा. बट एक ही तरह के क्रॉप ग्रो करने से सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट हो जाती है, और ऊपर से हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी एकदम ख़त्म हो जाती है. हैड अफेक्टेड द सॉइल सो मच दैट नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर. अब कोई चीज़ अच्छी ग्रो नहीं होती है. इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन. अब बहुत तकलीफ हो जाती है कि खाली फार्मिंग से हम कमा सके. तो हसमुख टू चेंज विद द टाइम. अब हसमुख भी टाइम के हिसाब से चेंज हो गया. ही इज़ ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम. अब क्या होता है कि डेब्ट मतलब कर्जा बढ़ जाता है, बैंक वाले परेशान करते हैं, तो बैंक वाले को लोन रिपे करने के लिए ही हैज़ टू डू समथिंग. अब वो टेंशन के अंदर तो वो एंग्री भी रहता है हर वक्त. हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग. अभी हसमुख का जो लड़का था वो पढ़ा लिखा था परेश, तो इसको फार्मिंग करना नहीं था. ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर. वो ट्रक ड्राइवर की तरह काम करने लगा. आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी रीपेड. क्यों? बैंक लोन तो उनको भरना ही था, बैंक तो पैसा नहीं छोड़ेगी बिकॉज उन्होंने लोन दिया हुआ था. तो ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज. अब परेश जो हसमुख का लड़का था वो बहुत हफ्तों तक भी घर पे नहीं आता था. तो 2 days बैक व्हेन ही केम होम, तो 2 दिन पहले जब घर पे आया, परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग. परेश ने कुछ लोग देखने के लिए देखा. वाह, ही आस्क्ड हिज मदर. उसने अपनी माँ को पूछा, वेयर इज दादाजीज वुडन सीड बॉक्स. कि दादाजी का जो सीड जो बॉक्स था लकड़े का वो कहाँ है. इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक. क्योंकि वो बॉक्स के अंदर स्क्रू और जो है सामान टूल्स है ट्रक के वो रखूंगा मैं. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी. अब सीड बोलता है, अब समझ में आया मैं क्यों अपनी स्टोरी में बोल रहा हूँ. क्योंकि अब मेरे अंदर जो है सीड निकल बॉक्स में से मेरा घर छीन जाएगा और मेरे को फेंक देंगे. सो इस तरह से मैं ये स्टोरी बोलता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था. सो नाउ डिस्कस एंड थिंक व्हाट कैन हैपन टू हसमुख्स फार्म आफ्टर सम ईयर. अब क्या होगा हसमुख के फार्म को कुछ सालों के बाद. तो कुछ सालों के बाद क्या होगा, फार्मिंग डिफिकल्ट हो जाएगी और बैंक का लोन भरना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो उसके बाद क्या होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी उसके फार्म में नहीं होगा. तो दामजी भाई सन हसमुख चोज टू बिकम अ फार्मर लाइक हिज फादर. तो दामजी भाई का जो लड़का था हसमुख, उसने उसके डैड की तरह, फादर की तरह फार्मर बनना चाहा. और हसमुख का सन जो था परेश इज नॉट अ फार्मर. ये फार्मर नहीं है बट अ ट्रक ड्राइवर. वाई वुड हैव ही हैव डन सो. तो उसने क्यों ऐसा किया, क्यों? इसके लिए परेश ऑब्जर्व दैट हिज फादर वॉज इन ग्रेट लॉस. परेश ने देखा कि उसके डैडी हसमुख जो थे वो एक बड़े लॉस में थे, और हसमुख ने देखा कि दामजी भाई वो प्रॉफिट में थे. इसलिए हसमुख बन गया फार्मर और परेश बन गया. हसमुख भाई को देखा उसके फादर को कि वो लॉस में है, तो इसके लिए फार्मर की जगह ट्रक ड्राइवर बन गया. सो ये रीपे करना बैंक का लोन, तो और इवन बेटर ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ ड्राइवर. तो ऑल्सो फार्मिंग हैड बिकम एक्सपेंसिव, तो ये वापस इसके लिए वो ट्रक ड्राइवर भी बन गया. द सीड्स वर नॉट श्योर दैट व्हाट हसमुख भाई वॉज टॉकिंग अबाउट द रियली प्रोग्रेस. अब जो ये सीड जो स्टोरी अपने कह रहा है अपनी, वो एकदम पक्का नहीं है कि हसमुख भाई प्रोग्रेस के बारे में जो बात कर रहे थे वो क्या क्या है, एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, एंड व्हाट डू यू फील. तो ये कैसा प्रोग्रेस है. सो ऑल न्यू मेथड्स दैट वर अडॉप्टेड बाय हसमुख भाई, जो नए नए मेथड हसमुख भाई ने अडॉप्ट किया, एक्चुअली रिजल्टेड इन हिज डाउनफॉल. उसके डाउनफॉल के अंदर उसने ये नए जो मेथड यूज किए उसके डाउनफॉल के लिए हुए थे. तो ही बॉट न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स. नई वेराइटी लाया था, वो इजीली अफेक्ट इंसेक्ट से हो जाते थे. ही बॉट एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन लाया था क्रॉप्स के लिए, जो एकदम गंदी स्मेल देते थे और सॉइल के जो टेक्सचर थे, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी उसको अफेक्ट करते थे. और वो वही क्रॉप उगाता था
जो मार्केट में ज़्यादा पैसे देते थे। लेकिन क्या होता था कि सब फार्मर जब स्टार्ट किया वही क्रॉप ग्रो करना, तो डिमांड जो है वो कम हो गई। अब जब डिमांड कम हो गई तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गई तो लोग खरीदना भी कम करेंगे। व्हाट हैपेंस कि जब ज़्यादा सप्लाई आ जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी तो भाव गिर जाएंगे। तो हसमुख भाई क्या करता था कि उसने वाटर पंप से निकालना चालू किया ज़मीन के अंदर से पानी। सिंस सब फार्मर वही काम करते थे तो वाटर लेवल जो अर्थ का था वो नीचे चला गया। तो इसके वजह से इनको फार्मिंग छोड़नी पड़ी और ट्रक ड्राइवर बनना पड़ा, तो रीपे करने के लिए लोन का कर्जा चुकाने के लिए। देयरफॉर हिज फार्मिंग वाज नॉट फ्लरिशिंग, फार्मिंग वर्क जो है फ्लरिश नहीं हुआ, ज़्यादा फला फूला नहीं, रादर इट हैज़ कमिंग टू एंड, और ये प्रोग्रेस नहीं बोलते हैं। हैव यू बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया विच में बी डिफिकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस? कभी देखा है तुमने तुम्हारे एरिया में जिसको प्रोग्रेस बोलते हैं? एंड व्हाट चेंजेस आर दीज एंड व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट देम? यस, बहुत चेंजेस देखे हैं और बहुत प्रोग्रेस देखे हैं, लेकिन सम लॉसेज एसोसिएट हुए हैं और डिफिकल्ट टू कॉल देम प्रोग्रेस। अब इन ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया है, लेकिन उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ गया है, और पोल्यूशन बढ़ गया जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इलेक्ट्रिक मशीन्स जो है इन्होंने सब जगह ले ली है दूसरे घर के कामकाज के अंदर भी, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, कटिंग वेजिटेबल्स, क्लीनिंग द हाउस, ये सब के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है कम टाइम में और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। लेकिन ये कम मेहनत की वजह से लोग जाड़े होने लगे, ओबेसिटी बढ़ गई, जॉइंट प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज ये सब काम में अभी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है, और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगा तो आदमी क्या होगा, जॉइंट दर्द करेगा, जाड़ा हो जाएगा और एकदम आलसी हो जाएगा। और कंप्यूटर की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब भी चला गया। सो यहाँ रीड द रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट। ये न्यूज़पेपर के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। तो फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू पे बैक द लोन्स। आंध्र प्रदेश के जो फार्मर्स थे उनको जेल भेज दिया क्योंकि वो लोन पे नहीं कर सके थे। दे हैड सफर्ड अ बिग लॉस इन फार्मिंग, वो लॉस उन्होंने फार्मिंग में किया। तो वन ऑफ दिस फार्मर्स, एक फार्मर नलप्पा रेड्डी, बैंक से लोन लिया कितना, 24,000 का। टू पे द लोन ही हैड टू टेक अनदर लोन फ्रॉम अ प्राइवेट मनी लेंडर। तो ये लोन पे करने के लिए उसने प्राइवेट मनी लेंडर से लोन लिया और बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पे लिया। इवन आफ्टर रीपेइंग ₹34,000, 24,000 का लोन बैंक का लोन था, वो भरने के लिए उसने प्राइवेट लेंडर से लिया जो हाई इंटरेस्ट था। आज 34,000 भरने के बाद भी उसने एंटायर लोन भी भर नहीं सका। तो रेड्डी सेज बैंक सेंड्स फार्मर टू जेल फॉर नॉट पेइंग बैक स्मॉल लोन्स। बैंक जो है फार्मर को जेल नहीं भेजती है, जेल भेजती है, स्मॉल लोन नहीं भरते हैं। बट व्हाट अबाउट द बिग बिजनेसमैन? अब बड़े बड़े बिजनेसमैन का क्या, जो करोड़ों रुपए का लोन लेते हैं और उनको कुछ नहीं होता है और जो पैसे भी नहीं देते। तो नलप्पा's रेड्डी स्टोरी इज शेयर्ड बाय थाउजेंड ऑफ फार्मर्स इन इंडिया हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस। ये स्टोरी बहुत सारे फार्मर्स इंडिया के अंदर शेयर करते हैं जो बड़े बड़े लॉस करते हैं। द सिचुएशन इज सो बैड, इतनी खराब है कि मेनी फार्मर्स सी नो वे आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। कोई चारा नहीं होता है कर्जा चुकाने के लिए, तो वो सुसाइड कमिट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स 1,50,000 फार्मर्स हैव डाइड लाइक दिस बिटवीन 97 to 2005। यानी 1997 से 2005 के बीच में 1,50,000 फार्मर्स ने सुसाइड कर दिया है। और दिस नंबर में भी मच हायर, ये नंबर कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिपे द लोन। अब व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर्स एंड फार्मिंग? अब क्या क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे दिमाग में फार्मर्स और फार्मिंग के बारे में? अब कुछ क्वेश्चंस अपने ग्रुप में करो, डिस्कस करो फार्मर्स से। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन अ ईयर एंड विच क्रॉप्स नीड हाउ मच वाटर? तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन करो एक फार्मिंग में। ये प्रोजेक्ट वर्क है। विजिट अ फार्म नियर एरिया, ऑब्जर्व करो फार्म को एंड टॉक टू द पीपल देयर एंड राइट अ रिपोर्ट। Read the report on page 180 by a group of class 5 students and who went to visit भास्कर भाई's farm। अब जो 180 पे है वो we are going to read। लेकिन ये प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या किया, तो ये जाते हैं फार्मर के पास,
पूछते हैं क्या क्या करते हैं और कितने सालों से कर रहे हैं. सो दे आर गोइंग टू डू दैट प्रोजेक्ट. सो पेज नंबर 180 पे हम भास्कर भाई फार्म का एक ये रीड करेंगे. तो भास्कर भाई फार्म, देहरी विलेज, गुजरात. तो ये रिपोर्ट एक स्टूडेंट ने रखी हुई है. एज वी एंटर्ड हिज फार्म वी वे सरप्राइज. जैसे उनके फार्म में गए हम सरप्राइज हो गए. बहुत सारे डेड लीव्स है, वाइल्ड प्लांट्स है, ग्रास है हर जगह. कुछ जगह ट्री के ब्रांचेस पड़े हुए हैं सूखे हुए, एज ए रिटन बाय इंसेक्ट्स. एट प्लेसेस वी सॉ सम प्लांट्स विथ कलरफुल लीव्स. कोई जगह देखा है कि कुछ प्लांट्स कलरफुल लीव्स के साथ में. वाई दिस? भास्कर भाई बोले दे वर क्रोटॉन प्लांट्स विच गेव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई. तो ये क्रोटॉन प्लांट्स है जो सिग्नल देते हैं कि सॉइल सूखा हो गया. वी वर सरप्राइज हाउ ही एक्सप्लेन द रूट्स ऑफ द क्रोटॉन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड. कि जो क्रोटॉन प्लांट्स है जो कलरफुल लीव्स वाले वो एकदम ग्राउंड के अंदर नहीं जाते हैं. सो जब टॉप लेयर का सॉइल ड्राई हो जाता है तो क्रोटॉन के जो लीव्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं. तो ये सिग्नल कहता है कि भाई अभी फार्म को अभी पानी चाहिए. तो वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्बली. हमने देखा सॉइल जो है सॉफ्ट है और क्रम्बली है. वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्रीज. बड़े बड़े लंबे कोकोनट ट्रीज देखे, फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट्स. तो फ्रेश कोकोनट्स देखे. वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर्स. हमने सोचा कोई स्पेशल फर्टिलाइजर्स यूज़ करता है. भास्कर भाई सेड ही डज नॉट बाय फर्टिलाइजर्स मेड इन फैक्ट्रीज. वो फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज से बने हुए नहीं यूज़ करते. उसकी सॉइल इतनी फर्टाइल है, ऑल द ड्राइड लीव इज स्लोली रॉट एंड मिक्स विथ इट. इस सॉइल, ये जो ड्राई लीव्स है वो स्लोली रॉट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और सॉइल के साथ में मिक्स हो जाते हैं. ही डग द सॉइल अ लिटिल एंड टोल्ड अस टू लुक. थोड़ा सा सॉइल को खोदा और उसने बोला वी सॉ थाउजेंड्स ऑफ अर्थवर्म. उसके अंदर बहुत सारे अर्थवर्म्स है. दिस आर माई सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड. ये अर्थवर्म जो है सॉइल के बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं. अर्थवर्म क्या करते हैं? सॉइल को सॉफ्ट करते हैं. वो डीक करते रहते हैं, खोदते रहते हैं अंडरनीथ टू मेक टनल्स बनाने के लिए. दिस वे, इस तरह से एयर एंड वाटर कैन इजीली गेट इनटू द सॉइल. एकदम इजीली वो सॉइल के अंदर जा जाते हैं. द अर्थवर्म ऑल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स. और जो अर्थवर्म है डेड लीव्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं और ड्रॉपिंग्स जो है उनके वो फर्टिलाइज करते हैं सॉइल को. तो प्रवीण टोल्ड अस अबाउट हिज अंकल इन द सिटी. प्रवीण ने उसके अंकल के बारे में बोला जो सिटी में रहते हैं. हु हैज डग अ पिट इन हिज गार्डन. गार्डन के अंदर एक खड्डा होता है, वहाँ पर ड्राइड लीव्स डालते हैं. सब किचन का वेस्ट मटेरियल जो है, जो वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, वो फ्रूट्स के होते हैं, लेफ्ट ओवर फूड होता है उसके अंदर डालते हैं. ही ऑल्सो हैज़ अर्थवर्म्स इन द पिट. अर्थवर्म भी है उनके खड्डे के अंदर. दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट. ये नेचुरल फर्टिलाइजर होता है. सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइजर विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी. तो वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट्स फ्रॉम द फार्म. दे वर रियली टेस्टी. हमने फ्रेश कोकोनट पिए, उसके अंदर से पानी पिए और कोकोनट खाए, बहुत टेस्टी थे. हमने लर्न किया कि न्यू वे ऑफ फार्मिंग कैसे किया जाता है. तो जो ग्रुप मेंबर्स थे, प्रफुल्ल थे, हंसा थे, कृतिका थी, चक्की थी, प्रवीण, जो क्लास 5C के थे. नाउ जर्नी ऑफ अ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेट. अब बाजरा सीड की जर्नी फील्ड से प्लेट में कैसे आती है. तो इन पिक्चर 2 यू कैन सी बाजरा क्रॉप्स इन द मोटर. अब ये पिक्चर के अंदर देखेंगे हम कि बाजरा क्रॉप यहाँ से निकल के आते हैं. सो व्हाट हैपेंस कि द कॉब्स आर क्रश्ड इन विद द पेस्टल मूसली एंड द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉब. यानी क्रश किया जाता है ओखली के अंदर से बाजरा के जो आते हैं दाने. तो यू कैन सी द सेपरेटेड सीड्स. नाउ दिस वर्क इज ऑल्सो डन बाय बिग मशीन्स लाइक थ्रेशर्स. वी कॉल बोथ these are different technologies using our hands or big machine to crush the seeds. So what technology could have been used to cut the stem in picture 1 and what do you think is being done in the grinder chakki in picture 4? So what ways technologies would have been used to do the work shown in picture 5 and 6? You can see that the dove is ready to in picture 6. अब ये सब complete हो गया. तो when do you think a sieve, chalni would have been used? Discuss each step in detail in any language you wish to use. Now what happens कि as in picture 1 के अंदर देखो कि
बाजरा क्रॉप्स कैन बी सीन, बाजरा क्रॉप दिख रहा है हमारे को। लेडी क्या करती है, सेपरेट कर रही है एट टेकिंग आउट द क्रॉप्स फ्रॉम द बाजरा क्रॉप्स, इसमें से बाजरा निकाल रही है। तो पिक्चर 2 के अंदर तो ये मस्टर्ड ओकली यूज फॉर क्रशिंग, ये क्रशिंग के लिए यूज करते हैं। द क्रॉप्स आर क्रश्ड विद अ पेस्टल, मूसली से, ये जो डंडी है इससे इससे पीसा जाता है, क्रश किया जाता है, सीड्स अलग हो जाते हैं। पिक्चर 3 के अंदर ये सेपरेटेड सीड्स दिखा है, इसमें से जो सीड्स निकले हैं ये अलग से सीड दिखा हुआ है। ये वर्क जो है अभी मशीन से होता है। पिक्चर 4 में क्या दिखा है हमारे को, ये रोटी यहाँ पर इसके चक्की के अंदर पीसती है, पीसने के बाद ये आटा बनाते हैं और इसमें से ये आटा गूदा हुआ है और गूदने के बाद इसके चपाती राउंड करते हैं और तवा पे बना के ये रोटी हम खाते हैं। सो दिस वे वी आर डूइंग the seeds. A seeds tells a story and how a seed is being coming from the farm और कितनी लंबी जर्नी होती है seeds आने में। So what we have learned in this chapter, there have been many changes over time in our food. What can these mean? बहुत सारे changes हुए हैं। ये story बोल रही है seed and what do you know from your elders to explain? So what happens if all farmers were to use only one kind of seed and grow only one kind of fruit, one kind of crop? यानी ये क्या होगा कि जितने भी ये खाना खाते हैं हम, ये सब चीज़ें कितनी लॉन्ग जर्नी से आती है, ये लॉन्ग जर्नी सीड फील्ड में से हमारे प्लेट में आती है। तो ये भी एक तरह से लॉन्ग जर्नी होती है। जो फार्मर्स जो मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, उनको कितनी मेहनत पड़ती है। लेकिन क्या होता है, दे हैव टू बी स्मार्ट इनफ। अभी एक ही तरह के क्रॉप ग्रो करेंगे तो क्या होगा, तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी तो उनको भाव नहीं मिलेगा, तो रेट्स नहीं मिलेंगे, अच्छे अर्न नहीं करेंगे। व्हेन दे डोंट अर्न दे कैन नॉट रीपे द लोन जो लोन लिए हुए हैं। सो एवरी फार्मर शुड बी डाइवर्सिफाइड, हर तरह के अलग अलग क्रॉप ग्रो करने चाहिए, रोटेट करना चाहिए, सो दैट फर्टिलिटी ऑफ आवर सॉइल शुड मेंटेन, और इस तरह से we can going to prosper. Okay students, so here we have completed our chapter and now I'll send the PDF. You have to write down this PDF in your notebook with all the notes. Thank you students.